Good morning and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. In the monsoon session, the issue of government raid on Dainik Bhaskar Group has been loudly raised by the oppositions. Opposition member protested the Income Tax Department's raid on Bhaskar Group in Rajya Sabha and raised the slogans. Thereafter, the House was adjourned till 2 p.m. After this proceeding started, but due to the heavy uproar, the House was adjourned till tomorrow. There was a ruckus in the Lok Sabha as well, where the issues phone tapping and espionage also arose. Thereafter, the Lok Sabha was adjourned till 4 p.m. Amidst the ongoing decision after the population control, a statement of Rashtriya Swayamsevak Sangh Chief Mohan Bhagwat has come to the fore. Mohan Bhagwat said in the program in Guwahati, Assam, that since 1930 efforts are going to increase the Muslim population in the country. Along with this, he said that the reason has been an attempt to make India Pakistan. Minister of State for Education Govind Singh Dodasra has been surrounded on the social media over the similar number received by two of his relatives in an interview of Rajasthan Administrative Service 2018 after the news was published in the media of regard. Youth and other of the social media has started campaign against with the resignation of the Education Minister. From today, Kisan Sansad of the farmer leaders were run at the Jantar Mantar in Delhi. The Delhi government has given its permission. The same in Delhi police has been tightly secure arrangement in view of the farmers' protest. They are informed that the farmers' leader had organized this program to express their displeasure during the ongoing monsoon session of Parliament. After the revolt of Sachin Pilot Camp last year, work has started at the level of Congress High Command on the issue decided at the time of reconciliation. The Reconciliation Committee formed to consider the demands of Sachin Pilot supporters has submitted its recommendation to the High Command. The Committee of Organization General Secretary K.C. Venugopal and in charge Ajay Makar has praised the recommendation prepared after listening to the demands of suggestion before the Congress High demanded. फर्जी मार्कशीट के मामले में पत्नी से बतौर अभिभावक सिग्नेचर करवाने वाले बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सराड़ा और सलूम्बर एडीजे कोर्ट से जमानत याचिका के रद्द होने के बाद विधायक अमृतलाल मीणा को बड़ी राहत मिली है। देर शाम तक हाईकोर्ट से जमानत के आदेश सलूम्बर जेल पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि सलूम्बर जेल में आदेश मिलने के बाद कल सुबह तक मीणा की रिहाई हो सकती है। सलूम्बर में भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा ने 12 जुलाई को सराड़ा कोर्ट में सरेंडर किया था। इस दौरान मीणा की जमानत पर सुनवाई कोर्ट करते हुए सराड़ा कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। जमानत खारिज होने के बाद विधायक मीणा ने जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कोर्ट और सलूम्बर एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के अंदर कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आ रही थी ये दूसरी लेयर के दौरान, जब ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही थी, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही थी और ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों के माहौल बिगड़े हुए थे और लोगों की मौत हो रही थी। ऐसे आंकड़े राज्य सरकारों के द्वारा दिखाए जा रहे थे। लेकिन अब इन्हीं आंकड़ों के बीच में आप सभी को बता दूं कि जब केंद्र सरकार ने आंकड़ों की बात कही है तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। जी हां, केंद्र सरकार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि संसद के अंदर जब ये मुद्दा उठा तो उस मुद्दा उठने के बाद में केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा कि राज्य की सरकारों ने हमारे सामने एक भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत के आंकड़े पेश नहीं किए हैं। जबकि कुछ समय पहले, जब आज से 2-3 महीने पहले की बात है, जब ऑक्सीजन की कमी चल रही थी और इस कमी के देखते हुए लोगों की मौतें हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी और सब लोग केंद्र सरकार को घेर रहे थे कि केंद्र की तरफ से हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब जब संसद में इसका मुद्दा उठाया है तो फिर आखिरकार कहां है ये आंकड़े, आखिरकार क्यों नहीं पेश किए गए कि इनकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से इन व्यक्तियों की मौत हुई है, ताकि उनको भी मुआवजा मिल सके या फिर अन्य किसी भी प्रकार की सहायता मिल सके। क्योंकि केंद्र सरकार ने तो ऑक्सीजन की ट्रेनें भी मंगवाई थी और इसी के साथ साथ उन्होंने विदेशों से भी ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवाए थे और ऑक्सीजन की कमी पूरी करने की पूरी कोशिश करी थी। लेकिन राज्य सरकारों ने क्या किया? कोरोना के आंकड़े जो ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है वही पेश नहीं किए हैं। तो फिर आखिरकार कैसे कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हुई है? जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा,
ये संसद के अंदर जो मुद्दा उठा है उसको लेकर के मैं आप सभी को अवगत करवा रहा हूँ कि आखिरकार किस प्रकार से देश की राजनीति एक दूसरे के ऊपर थोपती हुई नजर आ रही है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। इसमें बाकी और कई मुद्दे ऐसे हैं जो उठने अभी बाकी बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर स्कूलों को खोलने को लेकर के फैसला किया जा सकता है। जी हाँ, आज शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्री परिषद के साथ में बैठक करते हुए नजर आएंगे और उसके अंतर्गत सबसे अहम मुद्दा जो रखा गया है वह स्कूलों को लेकर के और शिक्षण संस्थानों को लेकर के रखा गया है, जिसके अंतर्गत 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के स्कूलों को खोलने को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि अब कोरोना के केस कम हो चुके हैं और राजस्थान के अंदर अब बहुत कम केस सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतनी जरूरी है और सावधानी के साथ साथ आप सभी को सरकार की गाइडलाइन की पालना करना भी जरूरी है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने कोरोना के दौरान बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इस अच्छे कार्य को देखते हुए ही आज कोरोना के केस इतने कम होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिलती है, यह राजनीति में चलता रहता है, लेकिन वहीं राजस्थान सरकार ने कोरोना के दौरान बहुत सक्रिय रहते हुए कार्य किया और इसी का जो रिजल्ट सामने आया है वह यह है कि इस कोरोना महामारी से लगभग राजस्थान की जनता ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी पूरी तरह से जीतना बाकी बताया जा रहा है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, इन दोनों को लेकर के आपसी विवाद चलता रहता है और अब तो पंजाब और के साथ साथ कई जगह पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सचिन पायलट ने कल मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका सीधा सीधा कहना उन्हीं की तरफ था और उन्होंने कहा है कि सरकार बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन उन्होंने कहा तो सरकार बनती रहती है और उसे बरकरार नहीं रख पाती। जी हाँ, सरकार तो बनती है लेकिन उसे बरकरार रखना बड़ी बात है और पायलट ने साफ साफ कहा कि 11 माह पहले जो मैंने मांगे रखी गई थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। और इसी के बाद में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में आप सभी को बता दूं कि 1998 के अंदर कांग्रेस के पास में 156 सीटें थी, तो वहीं 2003 के अंदर यह घट करके 56 सीटें रह गई। इसी को लेकर के उन्होंने ऐसा कहा कि सरकार तो बनी लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं रख पाई। और वहीं अगर हम 2013 की बात करें तो 2013 में भी 21 सीटों पर सिमट करके रह गई थी और इसी के चलते हुए सचिन पायलट अब अपने तीखे तेवर सरकार को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि कोरोना का प्रभाव कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ और इसी बीच कल राजस्थान के अंदर 22 कोरोना के नए मामले देखने को मिले हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति की कोरोना वायरस की वजह से मौत नहीं हुई है और वहीं अगर हम एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केसों में अभी भी 358 कोरोना के एक्टिव केस राजस्थान के अंदर मौजूद हैं और जल्द ही इनको खत्म करने के लिए आप सब सहयोग जरूर करें ताकि राजस्थान की जनता को कोरोना से निजात जरूर मिल सके। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए अब रुक कर लेते हैं ओरछा कस्बे की ओर, जहां पर आवारा पशुओं का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और इसी ओर प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नजर नहीं आ रहा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। ओरछा कस्बे में आवारा पशुओं का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और यह घटना आज की है। कस्बे के देवका बेरा के पास स्थित मिठाई की दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ सांड के आपसी लड़ने का वीडियो बड़ा नुकसान होते होते बचा। वहीं मिठाई की दुकान का कांच और काउंटर का फूट सकता था कांच, तो वहीं स्थानीय प्रशासन इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और कस्बे की गौशाला संचालक भी इन आवारा सांड को डालने से कर रहे हैं मना। चलिए अब रुक कर लेते हैं ओरछा कस्बे की ओर, जहां पर आवारा पशुओं का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और इसी ओर प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नजर नहीं आ रहा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। ओरछा कस्बे में आवारा पशुओं का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और यह घटना आज की है।
कस्बे के देव का बेरा के पास स्थित मिठाई की दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ सांड के आपसी लड़ने का वीडियो बड़ा नुकसान होते होते बचा। वहीं मिठाई की दुकान का कांच और काउंटर का फूट सकता था कांच, तो वहीं स्थानीय प्रशासन इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और कस्बे की गौशाला संचालक भी इन आवारा सांड को डालने से कर रहे हैं मना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। दिल्ली में तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान अपनी प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। इसकी वजह से मानसून सत्र चल रहा है, जिसकी वजह से किसान अपने प्रदर्शन को, अपने विरोध को प्रदर्शन करने के लिए किसानों ने किसान संसद का आयोजन किया है, जिसकी अनुमति उन्हें दिल्ली सरकार ने दे दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज से किसान नेताओं की किसान संसद का आयोजन शुरू हो रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने उन्हें अनुमति दे दी है। यही नहीं, सांसद के मौजूदा मानसून सत्र को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। किसानों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात कर दी गई है। सभी के पहचान पत्र चेक करने के बाद ही बैरिकेड के अंदर दिया जाएगा। यह किसान सांसद सुबह 11 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे किसान अपना प्रदर्शन खत्म कर वापस सिंधु बॉर्डर लौट जाएंगे। किसानों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात की गई है। सभी के पहचान पत्र चेक करने के बाद उन्हें बैरिकेड के अंदर आने दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक मानसून सत्र के दौरान संसद के निकट चल रही किसान संसद के देश के विभिन्न राज्यों से दिल्ली के विभिन्न मोर्चों पर किसानों के दस्ते पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस के 2 बार की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर पर किसानों को धरना प्रदर्शन की इजाजत दी है। दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किया है। 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा के अधिनियम 200 प्रदर्शनकारी किसानों को धरना प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। वहीं आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सिविल लाइंस पर एक बैठक का आयोजन किया है। आखिरकार इस बैठक के पीछे का मुद्दा क्या है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेगासस जासूसी प्रकरण के विरोध में प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर के 22 जुलाई गुरुवार की सुबह 10:30 बजे सिविल लाइन फाटक पर यानी कि आज सभा का आयोजन किया गया है। जयपुर शहर के समस्त विधायक एवं विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी, मेयर, पार्षद एवं पार्षद प्रत्याशी, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के सभी वार्डों के कांग्रेसजन, निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारीगण एवं कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी अपने साथियों सहित सभा में प्रदर्शन में भाग लेकर के विरोध दर्ज कराए हैं। बिल्कुल साफ बात है। मैं पहले भी निवेदन है कि बिल्कुल पूरी जाँच कर लो। मतलब बिल्कुल हम पाक और साफ है। मेरा पूरा इतिहास रहा है कि हम इससे फतेह खिलाफ है। हम इस तरह के लोगों को टेलीफोन नहीं करते। बिल्कुल पाक साफ है, किस तरीके का करते नहीं। और ये बात तायद पुलिस खुद ने कहा कि उपेंद्र का इसमें कोई लेना देना नहीं और बिल्कुल जानबूझ के वीडियो। सर, कुछ नज़दीकी और करीबी और कुछ कांग्रेस के नाम सामने आ रहे हैं। करे वही भरेगा। हमने तो बिल्कुल साफ आदमी जो गलत करेगा वही भुगतेगा। चलिए अभी रुक कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि गौतम आश्रम खुर्रा के अंदर गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लालसोट उपखंड के खुर्रा ग्राम स्थित महर्षि गौतम आश्रम में उत्सव के रूप में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया है। इसी दौरान आचार्य राजेश मौर्य ने अक्षपाद महर्षि गौतम की मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की मंगल कामनाओं के लिए हवन कुंड में आहुतियां दी हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। वहीं मंच संचालन रामचरण सिरसाली ने किया, तो दौसा जिले के लालसोट उपखंड से 18 किलोमीटर दूर खुर्रा ग्राम में समाज की अमूल्य धरोहर महर्षि गौतम आश्रम मौजूद है। यहाँ पास ही बिजासन माता का मंदिर है, जहाँ पर हर वर्ष मेला भरता है और हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। गौतम समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा दृढ़ संकल्पित होकर के खुर्रा में महर्षि गौतम आश्रम बनाने को लेकर नींव रखी गई। अदम्य करते हुए वहीं अटूट विश्वास और अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए समाज के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा गौतम आश्रम का निर्माण करवाया गया। तो वहीं आश्रम का उद्देश्य समाज को संगठित कर सामाजिक कुरीतियों सहित समाज को सर्वांगीण विकास करना था।
लेकिन कुछ समाज कंटकों द्वारा समाज को दो भागों में विभाजित कर दिया गया और संपूर्ण निर्माणाधीन भवन पर राजनीतिक परिणाम स्वरूप सामाजिक समरसता की भावना समाज बंधुओं में खत्म होती जा रही है। चुनिंदा लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर अपने आप को समाज के सर्वश्रेष्ठ नेता बनने की होड़ में लगे हुए हैं और इसी अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुशील गौतम, अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन गौतम, भगवान सहाय गौतम, सूरतपुरा जुगल गौतम, श्यामपुरा सहित समाज के अनेक लोगों ने शिरकत की है। आगंतुक समाज बंधुओं ने गौतम आश्रम निर्माण समिति कार्यकारिणी, जिन्होंने इस आश्रम के निर्माण के लिए अपना अमूल्य समय देकर के इसका निर्माण करवाया, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्होंने कहा कि संगठित रह करके ही समाज का विकास संभव है। हम प्रतिवर्ष गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज का खुर्रा गौतम आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से, टीम के माध्यम से हर साल सम्मेलन करते हैं। समाज को की एकता के लिए, समाज की परंपराओं रीतियों की रक्षा के लिए, अपने ब्राह्मणत्व के संरक्षण के लिए। किसी भी सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण जब ही संभव है जब वहाँ के समाज सुशिक्षित हो, समृद्ध हो। तो हमारा जो हर वर्ष ये लक्ष्य रहता है, यहाँ की जो सुदृढ़ टीम है ये अपने आसपास के गांवों में, अन्य जिलों में अपने प्रतिनिधि भेजती है। वहाँ से समाज के लोग एकत्रित होते हैं और हम इस पर चर्चा करते हैं कि समाज में बालिकाओं को शिक्षा मिले, बालकों को शिक्षा मिले। साथ ही जो हमारी वेदी की परंपरा है, हम वैज्ञानिक परंपरा के साथ अपनी जो जड़ें हैं उनको से भी जुड़े रहें और तभी उसका संरक्षण हो सकता है। आज हम वेदी की, वैज्ञानिकी, दार्शनिकी परंपरा को जो प्रत्येक सेवा कार्य में, अभी कोरोना काल चल रहा है, हम प्रत्येक बालक जो भी शिक्षा से दूर है, हम इस पे सभी को हमने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक बालक को शिक्षा के प्रति हम जोड़ें और उसकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आवे। इस प्रकार का हमें प्रत्येक को अभियान चलाना चाहिए। इसको एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। समाज के अंदर कई कुरीतियां है, इसके ऊपर भी कोई विचार विमर्श हुआ? हाँ, कुरीतियों के ऊपर तो प्रत्येक बार हमारा विचार अनेक वक्ताओं ने व्यक्त किया है। आज क्या विचार विमर्श किया? हाँ, हमने आज यही विचार व्यक्त किया कि अपने घर से, व्यक्ति से, यदि मैं अपने घर में बंद कर दूंगा किसी भी कुरीति को, तो मेरा भाई भी करेगा, मेरा परिवार के अन्य सदस्य भी करेंगे, गांव बंद करेगा। इस प्रकार धीरे धीरे, लेकिन व्यक्ति से ही ये कुरीतियों को बंद करता है। दूसरे को उपदेश देने से या सिर्फ हम सम्मेलन करने से उसको दूर नहीं कर सकते। हमको पहले अपने घर से दूर करना पड़ेगा। मेरे घर से दहेज बंद होगा, मेरे घर से नुक्ता बंद होगा, मेरे घर से ये रंग बदलने की प्रथा बंद होगी, तब जा करके उसको हम संदेश दे पाएंगे। कहने का मतलब है कि पहले अपने आप को सुधारो फिर समाज सुधारो। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ा संदेश है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मदन मोहन शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय गुजरगोड़ ब्राह्मण सभा का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। वहीं जयपुर एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई एक और देखने को मिली है, जिसके अंतर्गत अजमेर में देर रात को जयपुर एसीबी टीम की कार्रवाई देखने को मिली। कांस्टेबल के नाम पर रिश्वत ले रहे युवक को पकड़ा गया है और 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। पहले भी ले चुके हैं रिश्वत, तो वहीं रामगंज थाने में दर्ज केस में राहत के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। हाल में एएसआई पद पर पदोन्नत कांस्टेबल है ट्रेनिंग पर। वही खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर लगातार झूठे दहेज धारा, बलात्कार और मारपीट जैसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं। तो इसी को लेकर के दुर्गा मां के दरबार के अंदर दंडवत दी गई। बांदीकुई में मैंस राइट फाउंडेशन दौसा के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष डैनी झालानी द्वारा झूठी महिलाओं द्वारा लगाए जाने वाले झूठे दहेज धारा 498 ए, बलात्कार, मारपीट, छेड़छाड़, डीवी सीआरपीसी 125 केसों से पुरुषों व उनके परिवार की रक्षा के लिए बांदीकुई में गणेश जी के दरबार भांडेरा रोड से जैन मंदिर के पीछे दुर्गा मां के दरबार तक कनक दंडवत दी गई। डैनी झालानी ने कहा कि इन मुकदमों से पुरुष परिवार बहुत ही प्रताड़ित होता है, जिससे उसकी मानसिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और झूठी औरतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। झालानी ने बताया कि मैंने कुछ माह पूर्व कोर्ट और पुलिस से परेशान होकर के माता की शरण ली थी। माता ने समस्याओं का निवारण कर दिया, जिससे आज कनक दंडवत दी गई। इस दौरान प्रवक्ता विनेश वर्मा, तुलसी सोनी, शुभम झालानी, पार्षद महेंद्र दैमन,
शुभम प्रजापति, चिंटू वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के सामने सरकारी खामियों की असल तस्वीर रखने वाले दैनिक भास्कर ग्रुप पर सरकार ने दबिश डाली। भास्कर समूह के कई दफ्तरों पर गुरुवार तड़के इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। विभाग की टीम दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान स्थित दफ्तरों पर पहुंची और कार्रवाई अब भी जारी है। मॉनसून सत्र में दैनिक भास्कर ग्रुप पर सरकारी दबिश का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में भास्कर ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग के छापे का विरोध किया और नारेबाजी भी की। इसके बाद सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी हंगामा हुआ। यहाँ फोन टैपिंग और जासूसी का मुद्दा भी उठा। 26 जनवरी को दिल्ली में उग्र प्रदर्शन के बावजूद दिल्ली सरकार ने किसानों को एंट्री की इजाजत दे दी। यह परमिशन 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक की है। प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चलेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ मंजूरी दी है। भारत में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा रिपोर्ट के मामलों में 10 गुना ज्यादा हो सकता है। कोरोना मॉडर्न इंडिया के दौरान सबसे भयानक त्रासदी के तौर पर सामने आ सकता है। अब तक की सबसे बड़ी रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि मंगलवार को रिलीज हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना 30 लाख से 49 लाख मौतें जून 2021 तक हो चुकी हैं। गाजियाबाद की साक्षी चौधरी अब भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी की राह पर चलने को तैयार है। साक्षी का चयन पोलैंड में शुरू हो रहे वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में हुआ है। यह वर्ल्ड चैंपियनशिप 9 से 15 अगस्त के बीच होना है। महाराष्ट्र में मंडावा गांव में रहने वाले किसान ने बेटे अभिनेश साबले 1952 के बाद मेंस 3000 मीटर स्पीचलेस के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2019 में दोहे में हुए मेंस वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप फाइनल में 8 मिनट और 51.37 सेकंड का समय निकालकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। अविनाश ने सेना में जाने के बाद एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू किया। पिछले साल सचिन पायलट कैंप की बवाल के बाद सुलह के वक्त तय मुद्दों पर कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर काम शुरू हो गया है। सचिन पायलट समर्थकों की मांग का विचार करने के लिए बनी सुलह कमेटी ने अपनी सिफारिशें हाईकमान को सौंप दी है। संगठन महासचिव केवी वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन की कमेटी ने मांगों और सुझावों को सुनने के बाद तैयार की गई सिफारिशों को कांग्रेस हाईकमान के सामने रखा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक सहित कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत की खबरें आई थी। मगर एक दिन पहले ही केंद्र ने सदन में बयान दिया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, क्योंकि राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत की सूचना नहीं दी है। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने से पहले ही सरकारी तंत्र ने सिर्फ हथियार डाल दिए, बल्कि एक ही निजी फार्म को फायदा पहुंचाने के लिए तैयारी कर ली है। तीसरी लहर आई तो जिला और सैटेलाइट समेत करीब 3000 अस्पतालों की जांच आउटसोर्सिंग पर दे दी गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हरियाणा बुलेटिन में। अब तक की तमाम हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। संसद के मानसून सत्र के बीच तीनों कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से गुरुवार को जंतर मंतर पर किसान संसद लगाई जाएगी, जिसके अंदर 200 किसानों का एक दल सिंधु बॉर्डर से 4 बसों से सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। बस में सवार किसानों की पूरी लिस्ट दिल्ली पुलिस के पास है, जिसमें वेरीफाई करने के बाद दिल्ली पुलिस किसानों की बस को फ्लाइट करते हुए रवाना किया। 12 बजे किसान जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे। किसानों के साथ बस में किसान नेता राकेश टिकैत भी हैं। इससे पहले टीकरी बॉर्डर के बाद किसान बस में सवार होकर सिंधी बॉर्डर पहुंचे थे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 जुलाई को तीनों कृषि कानून को वापस लेने के विरोध में संसद मार्च का ऐलान किया था। स्टॉक की कमी का असर वैक्सीनेशन अभियान पर सीधा पड़ रहा है। गुरुवार को जिले में 9 सेंटरों पर वैक्सीन व कोविशील्ड की कुल 1600 डोज लगेगी। कुल सेंटर पर पहली और दूसरी डोज लगाई दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कोरोना का खतरा अभी भी कम नहीं है। बावजूद इसके पर्याप्त मात्रा में रेवाड़ी को वैक्सीन का स्टॉक नहीं मिल पा रहा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 250 डोज उन्हें को लगेगी जो पहली डोज लगवा चुके हैं। इसके अलावा CHC गुरावाड़ा में कोविशील्ड की 130 डोज दूर कोसली अस्पताल में कोविशील्ड की 70 पहली डोज लगेगी। PHC जाटूसाना में पहली और दूसरी कुल 200 डोज लगेगी। पेगासस मामले में विपक्ष के सड़क से लेकर संसद तक के आक्रामक रूप को देखकर केंद्र सरकार के बचाव के पक्ष में आए सीएम ने खुद को जासूसी होने का डर बताया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट एजेंसियां जासूसी को सॉफ्टवेयर बनाती है। इससे बचने के लिए किसी ने उनका इंटरनल मामला है या उसे खरीदने वाले का मामला है, इसके हित क्या है या उसका मामला है। उन्होंने मोबाइल डेटा बनता है, पता नहीं उसमें मेरा और आप लोगों का टेलीफोन नंबर हो। ऐसे ही 50,000 नंबर रिलीज किए गए हैं। हो सकता है उनका टारगेट हो, लेकिन टारगेट किसने बनाया, कौन सी कंपनी ने बनाया और कहां से नंबर लिया, उनमें काम नहीं किया गया, इसका कोई प्रमाण नहीं है।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बकरीद पर विवादित टिप्पणी की है। साथ ही भाजपा सरकार की ही पूर्व केंद्रीय मंत्री व मौजूदा सांसद मेनका गांधी पर तंज कसा है। स्पीकर ने सोशल मीडिया पर कृपया मेनका गांधी जवाब दें। आज बकरीद के अवसर पर पूरे देश में लाखों बकरों का कत्ल किया जा रहा है। क्या यह क्रुएल्टी टू एनिमल नहीं है? इस बेजुबान पशुओं को कत्ल को रोकने के लिए मेनका गांधी द्वारा संचालित संस्था क्रुएल्टी टू एनिमल क्या कदम उठा रही है? स्पीकर की यह टिप्पणी मेनका के पुराने बयान से जोड़कर देखी जा रही है। दरअसल फरवरी में पंचकुला में कुत्तों को कैनल हाउस में बेचने का प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो मेनका ने सोशल मीडिया पर सीएम से सवाल किया कि कुत्तों को कैद करके कैसे रखा जा सकता है। यह उनके अधिकारों का हनन है जो अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद प्रोजेक्ट रोक दिया गया था। तब गुप्ता ने कहा कि आवारा कुत्ते इंसान से बढ़कर नहीं है। एक लड़की ने ट्यूशन टीचर पर उसके साथ करीब 3 साल तक दुष्कर्म और शादीशुदा होने के बाद भी कोर्ट मैरिज करने का आरोप लगाया। लड़की ने ट्यूशन टीचर के अलावा उसकी पत्नी, मां व महिला वकील के खिलाफ गन्नौर पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस को दी शिकायत में लड़की ने बताया कि क्षेत्र में एक गांव में बुआ फूफा के पास रहकर एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं में पढ़ती थी। तब उसके स्कूल की महिला टीचर ने ट्यूशन के बहाने अपने पति अमित सैनी से मिलवाया। इसके बाद अमित के पास ट्यूशन पढ़ने लगी। आरोपी उसे कई बार घर पर आकर भी पढ़ाता था। आरोप है कि ट्यूशन टीचर अमित सैनी उसे बरगलाकर 2017 से लेकर अब तक कई बार दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। आरोपी ने किसी को बताने पर उसके बुआ व फूफा को जान से मारने की धमकी भी दी। अप्रैल में आरोपी मंगल दोष दूर करने की बात कहकर समालखा मंदिर में ले गया, जहां पर मंगल दोष दूर करने के साथ ही वह आरोपी अमित की पत्नी बन गई। उन्होंने एक महिला वकील के साथ मिलकर जज्जर ले जाकर जबरन शादी के कागजात पर सिग्नेचर भी करवा लिए। इसके बाद उसे अपने साथ गन्नौर स्थित घर में बंधक बनाकर रखने लगा। आयकर विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि आयकर विभाग के दैनिक भास्कर ग्रुप पर छापे पड़ चुके हैं। भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, इंदौर और जयपुर जद में नजर आ रहे हैं। समूह के ठिकानों पर सुबह सुबह पहुंची है आईटी टीमें, तो वहीं जयपुर दफ्तर पर 30 से 35 आईटी अधिकारी अभी भी मौजूद हैं। वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर पार्षद महेंद्र दैमन ने ज्ञापन सौंपा है। आखिरकार किन मांगों को लेकर के उन्होंने ज्ञापन सौंपा, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के बांदीकुई आगमन पर पार्षद महेंद्र दैमन ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि ब्रिटिश कालीन रेल नगरी बांदीकुई शहर के मध्य स्थित आगरा फाटक संख्या 104 की जटिल समस्या के स्थायी समाधान, लिलोस फाटक संख्या 101 से दिल्ली लाइन को सीधा जोड़ा जाकर के आगरा लाइन शहर के मध्य से हटाई जाकर बांदीकुई की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है। साथ ही दैमन ने बताया कि स्थायी समाधान होने तक आगरा फाटक संख्या 104 पर स्पॉट ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाए ताकि बार बार लगने वाले जाम से निजात मिल पाएगी और इस फाटक से सैकड़ों गांव का आवागमन रहता है। ट्रैफिक के भारी दबाव के कारण पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और इमरजेंसी सेवाओं में भी कोई राहत नहीं मिल पाती। दुर्घटना स्थल और गंभीर अव्यवस्था के बीमार पीड़ितों को भी फाटक पर मृत्यु का निराश होना पड़ा है। पूर्व में भी ट्रैफिक कंट्रोल प्लान पार्षद महेंद्र दैमन द्वारा दिया गया था, जिस पर पूर्ण काम अभी तक नहीं हुआ और उस कार्य को भी पूर्ण करवाया जाए। इस दौरान पार्षद दिलीप सैनी, मनमोहन, इंद्रजीत सिंह, प्रभाकर सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। एक और खबर सामने आ रही है जिसमें आप सभी को बता दूं कि पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है। लखनऊ के SGPGI अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, तो वहीं ICU में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है कल्याण सिंह। चलिए अब एक रुख कर लेते हैं गंगापुर सिटी की ओर, जहां पर प्राइवेट बसों की बीमा अवधि को बढ़ाने को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। और क्या कुछ इस ज्ञापन के अंदर मांगे रखी गई हैं, आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। लॉकडाउन के दौरान खड़ी रही प्राइवेट बसों की बीमा अवधि बढ़ाई जाने के क्रम में SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष लॉकडाउन के दौरान खड़ी रही प्राइवेट बस संचालक एवं ऑपरेट पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे संदर्भ में आज गुरुवार को गंगापुर सिटी में न्यू प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के दौरान न्यू प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह नरूका ने कहा
कि कोरोना के कारण बसों का संचालन नियमित नहीं हुआ। डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और बसों का किराया जो 5 वर्ष पहले था वही आज है। बसों के कलपुर्जे, टायर आदि की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है और लॉकडाउन के दौरान खरीदी गई बसों का बीमा भी निरंतर चल रहा है। हमारी करीब 4 दिन पहले जयपुर में राजस्थान लेवल पे एक मीटिंग हुई थी प्रेस क्लब में। उसमें निर्णय लिया गया था और राजस्थान में 22 तारीख को एक दिन का सांकेतिक चक्का जाम का आयोजन हमारे किया जा रहा है और जिसमें प्रमुख रूप से हमारी मांग है 1 साल का टैक्स माफ़ करना संपूर्ण। और लगभग ये मानिए जिस समय डीजल 50 रुपये लीटर हुआ करता था 5 साल पहले, उस समय का किराया हम आज भी ले रहे हैं। तो हमारी एक सबसे बड़ी मांग ये भी है कि 40% रोडवेज के किराए में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि रोडवेज हमारा कंपटीटर है। रोडवेज में वृद्धि होगी उसी के अनुपात में हम किराया हमारा बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा एक हमारी मांग है, जो गाड़ी लॉकडाउन के दौरान खड़ी रही है, सरकार की ओर से आदेश था लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो गाड़ी खड़ी रही है उसके बीमा की अवधि भी एक्सटेंड करनी चाहिए। और इसके अलावा आने वाले टाइम में जिस हिसाब से डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, हमारी मांग है हम हमारी गाड़ियों को सीएनजी में तब्दील करें। इसके लिए सीएनजी स्टेशन की यहाँ पे उपलब्ध कराई जाए और सीएनजी किट लगवाने के लिए गाड़ियों में, जैसे सरकार हर चीज़ में सब्सिडी देती है, रोडवेज को सब्सिडी देती है, हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेट बसों को भी सीएनजी किट लगवाने के लिए सब्सिडी दी जाए। गए लॉकडाउन में इन्होंने हमको एक स्लैब बढ़ाया था, 2 महीने का शायद टैक्स माफ़ किया था। उसके बाद उन्होंने 1 महीने में 25% टैक्स लिया था, उसके दूसरे महीने में उन्होंने 50% लिया था, तीसरे महीने में उन्होंने 75% लिया था और बाद में उन्होंने टैक्स पूरा स्लैब चालू कर दिया। मगर परिस्थिति ये बन गई है, दोनों सालों से हमारा जब व्यवसाय का टाइम आता है, एक शादियों का टाइम होता है प्रॉपर, जिसमें बस वालों को थोड़ी आय की संभावना होती है, क्योंकि रूट पे कुछ रखा नहीं है। तो जब जैसे ही शादियों का सीज़न आया, गई साल मार्च में एकदम लॉकडाउन लग गया और हमारी जितनी शादी बुकिंग थी, पार्टियाँ थी, सब कैंसिल हो गई। और वही दौर दूसरी साल 2021 में वापस आ गया, जो हमारा एक सीज़न का टाइम था जिसमें हम कुछ उम्मीद थी हम कमाने की, वो हमारी वापस चौक गई। अगर हमको इस सांकेतिक हड़ताल से सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिलता या हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, तो निश्चित मानिए अगले आने वाले दिनों में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और आंदोलन भी ऐसा होगा, चक्का जाम हमारी बसों का होगा, साथ में हम सबका चक्का जाम करेंगे और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी। चलिए अब एक रुक कर देते हैं बांदीकुई की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि वहां के वार्डों के अंदर सफाई व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर के आखिरकार वहां का क्या कुछ माहौल बना हुआ है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। बांदीकुई के अंदर बारिश को देखते हुए पानी का निकास की समस्या को लेकर बांदीकुई नगरपालिका के वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा के नेतृत्व में पार्षदों के साथ आज ईओ नगरपालिका को अवगत करा करके शीघ्र सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। इसी अवसर पर पार्षद रमाकांत ने आवारा सांडों, पशुओं व बंदरों के पकड़ने के लिए भी कहा और इसी अवसर पर उनके साथ पूर्व वाइस चेयरमैन व वर्तमान पार्षद मनोज जैमन, पार्षद रमाकांत फॉरेस्टर, रामेश्वर ठेकेदार, राजू चौधरी सहित कई लोग उपस्थित रहे। ईओ नगरपालिका बांदीकुई ने अति शीघ्र सफाई व्यवस्था में सुधार का आश्वासन भी दिया। वही खबर 12 जिले से सामने आ रही है, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया है और इसी स्थापना दिवस के दौरान उन्होंने क्या कुछ कार्यक्रम रखा, आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। 12 बैंक ऑफ बड़ौदा की 12 शाखा में मनाया गया है 114वां स्थापना दिवस। वहीं इस दौरान शाखा में गुब्बारे लगाकर सजावट की गई और इसी अवसर पर शाखा प्रबंधक मुकेश जैन ने बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी तथा साथ ही शाखा की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बैंक की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी और आज इसका 114वां स्थापना दिवस है। जैन ने बताया कि बैंक के स्थापना का उद्देश्य था कि एक दिन यह इंटरनेशनल बैंक बने और आज उस स्तर पर पहुंच चुका है। धीरे धीरे हम बैंक को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ले जा रहे हैं। स्थापना दिवस मनाया, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? ये जो अपना 114वां स्थापना दिवस है बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक 20 जुलाई 1908 को स्थापित किया गया था महाराजी सायलजा राव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा। उनका ये विजन था कि ये बैंक इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में टॉप पर आए। तो धीरे धीरे इस बैंक ने अपनी इमेज बनाई और आज इंडिया का इंटरनेशनल बैंक है।
अब बैंक ने क्या किया है कि धीरे धीरे अपने बैंक को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेके जा रहा है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले जाने के लिए कई डिजिटल मोड अपनाए हैं, जैसे कि एम कनेक्ट है, ऑनलाइन पासबुक है, ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब एक मिनट में आप अपना लोन सेंक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो कई नई नई चीज़ों को उत्पाद ला रहे हैं। और कस्टमर्स के लिए इस टाइम अगर देखा जाए PSU यूनिट्स, जो PSU बैंक है उसमें सबसे बेस्ट बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका आप गेटअप देखेंगे या मार्केटिंग देखेंगे या कस्टमर सर्विस देखेंगे तो किसी भी ब्रांच में जाओगे आप तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री आपको रिप्लाई मिलेगा। सर किसानों के लिए और क्या कोई खुशखबरी है क्या? किसानों के लिए बैंक नित्य नए दिन नई नई योजनाएं चला रहा है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा गोल्ड लोन दे रहा है। वो मार्केट में बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पर है, 7.35% पर अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो उनको गोल्ड लोन दिया जा रहा है। किसानों के लिए जो भैंस गाय पालन करते हैं उनके लिए हसबेंड्री का लोन दिया जा रहा है, वो भी 7 से 8% पे दिया जा रहा है। इस समय विश्व में सबसे सस्ता लोन अगर कोई दे रहा है तो भारत सरकार द्वारा बैंक द्वारा KCC जो दी जा रही है 3 लाख तक, वो 7% में दी जा रही है। तो 30% की छूट, 3% छूट हो जाती है जो बराबर जमा कराते हैं। तो किसानों के लिए सबसे सस्ता पैसा बैंक हमेशा उपलब्ध करवा रहे हैं। अपने बैंक ने कंटिन्यूसली अभी लास्ट 7 से 8 महीने में 4 से 5 करोड़ गोल्ड लोन दे दिया है। तो बड़े बड़े जो किसान थे, परेशान थे, मार्केट में 12-12, 13-13% से पैसा ले रहे थे, वो बैंक में अपने 7 से 8% पे गोल्ड लोन ले रहे हैं। सर ये आवास योजना में जो ये प्रधानमंत्री से कोई मिलता ही राहत या कि अपने बैंक इस पे मिलता है क्या? हाँ, प्रधानमंत्री योजना में पहले क्या था 1 अप्रैल 2021 से इसमें कुछ चेंज हो गए हैं। पहले सभी के लिए था, अभी मकान की साइज़ 60 मीटर होनी चाहिए और इनकम है उसकी 6 लाख से कम होनी चाहिए। वही लोग अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मैं एप्लीकेबल होंगे। उनके पास पहले कोई दूसरा मकान नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। पहले अगर कोई मकान रेजिडेंशियल हाउस है तो वो उसमें एलिजिबल नहीं है। सर आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश कुमार जैन और 2 सितंबर 2011 से मैं बैंक में हूँ। यहाँ मुझे आए हुए 21 सितंबर 2020 में मैं प्रमोशन होकर यहाँ पे एज ए चीफ मैनेजर आया। शाखा प्रबंधक? हाँ, शाखा प्रबंधक। महाराष्ट्र में कई इलाकों में कल मूसलाधार बारिश हुई कि गली मोहल्ले दरिया में तब्दील हो गए। मूसलाधार बारिश की वजह से इगतपुरी और खाद्य के बीच ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से ठप हो गई। पानी भरने की वजह से उम्बेरमाली रेलवे स्टेशन और कसारा के बीच मुंबई लोकल ट्रेन सेवा रोकनी पड़ गई। वहीं ठाणे में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसका असर यहां आम जिंदगी पर दिख रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से भिवंडी इलाके में जल जमाव में गंभीर हालत है। वहां इस इलाके में करीब 20 लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए स्थानीय रजिस्टर रिस्पांस फोर्स को तैनात करना पड़ा। महाराष्ट्र में कई इलाकों में कल मूसलाधार बारिश हुई कि गली मोहल्ले दरिया में तब्दील हो गए। मूसलाधार बारिश की वजह से इगतपुरी और खाद्य के बीच ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से ठप हो गई। पानी भरने की वजह से उम्बेरमाली रेलवे स्टेशन और कसारा के बीच मुंबई लोकल ट्रेन सेवा रोकनी पड़ गई। वहीं ठाणे में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसका असर यहां आम जिंदगी पर दिख रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से भिवंडी इलाके में जल जमाव में गंभीर हालत है। वहां इस इलाके में करीब 20 लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए स्थानीय रजिस्टर रिस्पांस फोर्स को तैनात करना पड़ा। जनसंख्या नियंत्रण कानून काफी दिनों से बेहद चर्चा में है। इसी चर्चा के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत का पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान एक बयान सामने आया, जिसमें RSS प्रमुख ने कहा कि भारत में लगातार मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो कि लगातार सन 1930 से जारी है। ये इस मंशा से किया जा रहा है ताकि भारत को भी वापस पाकिस्तान बनाया जा सके। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है मोहन भागवत ने। विभाजन को मान्यता मिलती ही नहीं, लेकिन नेताओं ने निर्णय कर दिया, जनता ने उसको NRC ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को CAA से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। और इसलिए उस समय में हमारे लोगों ने सोचा, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी सोचा कि सारी जनता अंग्रेजों को यहां से निकाल देने के लिए जो लड़ी, वो इस कल्पना से कि पूरा भारत एक स्वतंत्र देश होगा। लेकिन आ गया विभाजन। विभाजन मान्य करते समय कोई सार्वमत नहीं लिया गया।
उस समय सार्वमत लेते, विभाजन को मान्यता मिलती ही नहीं। लेकिन नेताओं ने निर्णय कर दिया, जनता ने उसको मान लिया, लड़े नहीं थे उसके लिए, फिर भी मान लिया। हम भगवान को एक रूप में देखते, आप किसी दूसरे रूप में देखते, ठीक है। अपने भक्ति में हम पक्के हैं, आपकी भक्ति में आप भी पक्के हो, हमको कोई दिक्कत नहीं। भाषा आपकी अलग अलग है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे की भाषा का आदर सम्मान करके हम रहेंगे, एक दूसरे की भाषाओं की सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। ये जो सारी बातें हैं, सभी कहते हैं, ये बात आदर्श की बात इस नाते कही जाती है, लेकिन इस आदर्श को चरितार्थ करने वाला केवल ये हिंदुस्तान की परंपरागत संस्कृति का आचरण करने वाला व्यक्ति है। ये हमारी संस्कृति है। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये बातें दुनिया से हमको सीखनी नहीं है, ये हमारी परंपरा में, हमारे खून में है। और इसलिए सबसे अधिक एक खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के अंदर संतों के सानिध्य में 101 पौधारोपण किए गए। दौसा जिले के लालसोट में अनुराग सेवा संस्थान द्वारा अपने 27वें स्थापना दिवस पर बुधवार को श्री गणेश मंदिर परिसर में महंत रामदास जी महाराज एवं मदन मोहन दास जी महाराज के पावन सानिध्य में आचार्य राजेश खांडल द्वारा पूजा अर्चना करवा करके बिल्व पत्र का पौधा लगाकर अनुराग पर्यावरण संरक्षण माह 2021 का शुभारंभ किया गया। इसी अवसर पर षट दर्शन संत समाज के अध्यक्ष महंत रामदास महाराज ने कहा है कि हमारी प्राचीन और सनातन सभ्यता एवं संस्कृति के अनुसार प्रकृति का हर अंश हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, किंतु भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हमने अंधाधुंध दोहन कर सृष्टि को विनाश के कगार पर ला दिया है। जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हजारों को अपनी जान से हाथ धोनी पड़ी थी, अब भी नहीं संभले तो और भी ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लालसोट उपखंड अधिकारी गोपाल जांगीर ने कहा कि इस बार राजस्थान सरकार भी पौधारोपण को लेकर के गंभीर है। राजस्थान सरकार 8 औषधीय पौधे प्रत्येक परिवार को निःशुल्क वितरण करने जा रही है। सघन पौधारोपण को जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो प्रकृति से पोषण पा रहा है वह पौधारोपण कर प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। इसी अवसर पर इंडस टावर के वरिष्ठ अधिकारी दीपक वर्मा ने कहा कि वन संपदा ही हमारी वास्तविक संपदा है, जो हमारे जीवन का आधार है, और पौधे के बिना प्रकृति और जीव मात्र के अस्तित्व की कल्पना करना भी बेमानी है। हमारा ध्येय पौधे के बालक की तरह लालन पालन करने का होना चाहिए, जब तक कि वह वृक्ष नहीं बन जाए। हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुखद भविष्य के लिए हमको पूर्ण मनोयोग के साथ वन संपदा के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति गंभीर होना चाहिए। इसी अवसर पर इंडस टावर जयपुर की मैनेजर नेहा बम, नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष स्वामी, पार्षद पिंकी चतुर्वेदी, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज सहित कई लोग उपस्थित रहे। चलिए अभी रुक कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि गौतम आश्रम खुर्रा के अंदर गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लालसोट उपखंड के खुर्रा ग्राम स्थित महर्षि गौतम आश्रम में उत्सव के रूप में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया है। इसी दौरान आचार्य राजेश मारिया ने अक्षपाद महर्षि गौतम की मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की मंगल कामनाओं के लिए हवन कुंड में आहुतियां दी हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। वहीं मंच संचालन रामचरण सिरसाली ने किया, तो दौसा जिले के लालसोट उपखंड से 18 किलोमीटर दूर खुर्रा ग्राम में समाज की अमूल्य धरोहर महर्षि गौतम आश्रम मौजूद है। यहाँ पास ही बिजासन माता का मंदिर है, जहाँ पर हर वर्ष मेला भरता है और हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। गौतम समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा दृढ़ संकल्पित होकर के खुर्रा में महर्षि गौतम आश्रम बनाने को लेकर नींव रखी गई। अदम्य करते हुए वहीं अटूट विश्वास और अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए समाज के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा गौतम आश्रम का निर्माण करवाया गया। तो वहीं आश्रम का उद्देश्य समाज को संगठित कर सामाजिक कुरीतियों सहित समाज को सर्वांगीण विकास करना था, लेकिन कुछ समाज कंटकों द्वारा समाज को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और संपूर्ण निर्माणाधीन भवन पर
राजनीतिक परिणाम स्वरूप सामाजिक समरसता की भावना समाज बंधुओं में खत्म होती जा रही है। चुनिंदा लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर अपने आप को समाज के सर्वश्रेष्ठ नेता बनने की होड़ में लगे हुए हैं और इसी अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुशील गौतम, अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन गौतम, भगवान सहाय गौतम, सूरतपुरा जुगल गौतम, श्यामपुरा सहित समाज के अनेक लोगों ने शिरकत की है। आगंतुक समाज बंधुओं ने गौतम आश्रम निर्माण समिति कार्यकारिणी, जिन्होंने इस आश्रम के निर्माण के लिए अपना अमूल्य समय देकर के इसका निर्माण करवाया, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्होंने कहा कि संगठित रह करके ही समाज का विकास संभव है। हम प्रतिवर्ष गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज का खुर्रा गौतम आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से, टीम के माध्यम से हर साल सम्मेलन करते हैं समाज को की एकता के लिए, समाज की परंपराओं पर रीतियों की रक्षा के लिए, अपने ब्राह्मणत्व के संरक्षण के लिए। किसी भी सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण जब ही संभव है जब वहाँ के समाज सुशिक्षित हो, समृद्ध हो। तो हमारा जो हर वर्ष ये लक्ष्य रहता है, यहाँ की जो सुदृढ़ टीम है ये अपने आसपास के गांवों में, अन्य जिलों में अपने प्रतिनिधि भेजती है। वहाँ से समाज के लोग एकत्रित होते हैं और हम इस पर चर्चा करते हैं कि समाज में बालिकाओं को शिक्षा मिले, बालकों को शिक्षा मिले। साथ ही जो हमारी वेदी की परंपरा है, हम वैज्ञानिक परंपरा के साथ अपनी जो जड़ें हैं उनको से भी जुड़े रहें और तभी उसका संरक्षण हो सकता है। आज हम वेदी की, वैज्ञानिकी, दार्शनिकी परंपरा को जो प्रत्येक सेवा कार्य में, अभी कोरोना काल चल रहा है, हम प्रत्येक बालक जो भी शिक्षा से दूर है, हम इस पे सभी को हमने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक बालक को शिक्षा के प्रति हम जोड़ें और उसकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आवे। इस प्रकार का हमें प्रत्येक को अभियान चलाना चाहिए। इसको एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। समाज के अंदर कई कुरीतियां है, इसके ऊपर भी कोई विचार विमर्श हुआ? हाँ, कुरीतियों के ऊपर तो प्रत्येक बार हमारा विचार अनेक वक्ताओं ने व्यक्त किया है। आज क्या विचार विमर्श किया? हाँ, हमने आज यही विचार व्यक्त किया कि अपने घर से, व्यक्ति से, यदि मैं अपने घर में बंद कर दूंगा किसी भी कुरीति को, तो मेरा भाई भी करेगा, मेरा परिवार के अन्य सदस्य भी करेंगे, गांव बंद करेगा। इस प्रकार धीरे धीरे, लेकिन व्यक्ति से ही ये कुरीतियों को बंद करता है। दूसरे को उपदेश देने से या सिर्फ हम सम्मेलन करने से उसको दूर नहीं कर सकते। हमको पहले अपने घर से दूर करना पड़ेगा। मेरे घर से दहेज बंद होगा, मेरे घर से नुक्ता बंद होगा, मेरे घर से ये रंग बदलने की प्रथा बंद होगी, तब जा करके उसको हम आपके कहने का मतलब है कि पहले अपने आप को सुधारो फिर समाज सुधारो। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ा संदेश है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मदन मोहन शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय गुजरगोड़ ब्राह्मण सभा का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। वहीं जयपुर एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई एक और देखने को मिली है, जिसके अंतर्गत अजमेर में देर रात को जयपुर एसीबी टीम की कार्रवाई देखने को मिली। कांस्टेबल के नाम पर रिश्वत ले रहे युवक को पकड़ा गया है और 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। पहले भी ले चुके हैं रिश्वत। तो वहीं रामगंज थाने में दर्ज केस में राहत के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। हाल में एएसआई पद पर पदोन्नत कांस्टेबल है ट्रेनिंग पर। वही खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर लगातार झूठे दहेज धारा, बलात्कार और मारपीट जैसे मामले लगातार सामने आते ही रहते हैं। तो इसी को लेकर के दुर्गा मां के दरबार के अंदर दंडवत दी गई। बांदीकुई में मैंस राइट फाउंडेशन दौसा के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष डैनी झालानी द्वारा झूठी महिलाओं द्वारा लगाए जाने वाले झूठे दहेज धारा 498 ए, बलात्कार, मारपीट, छेड़छाड़, डीवी सीआरपीसी 125 केसों से पुरुषों व उनके परिवार की रक्षा के लिए बांदीकुई में गणेश जी के दरबार भांडेरा रोड से जैन मंदिर के पीछे दुर्गा मां के दरबार तक कनक दंडवत दी गई। डैनी झालानी ने कहा कि इन मुकदमों से पुरुष परिवार बहुत ही प्रताड़ित होता है, जिससे उसकी मानसिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और झूठी औरतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। झालानी ने बताया कि मैंने कुछ माह पूर्व कोर्ट और पुलिस से परेशान होकर के माता की शरण ली थी। माता ने समस्याओं का निवारण कर दिया, जिससे आज कनक दंडवत दी गई। इस दौरान प्रवक्ता विनेश वर्मा, तुलसी सोनी, शुभम झालानी, पार्षद महेंद्र दैमन, शुभम प्रजापत, चिंटू वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 9
19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के सामने सरकारी खामियों की असल तस्वीर रखने वाले दैनिक भास्कर ग्रुप पर सरकार ने दबिश डाली। भास्कर समूह के कई दफ्तरों पर गुरुवार तड़के इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। विभाग की टीम दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान स्थित दफ्तरों पर पहुंची और कार्रवाई अब भी जारी है। मॉनसून सत्र में दैनिक भास्कर ग्रुप पर सरकारी दबिश का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में भास्कर ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग के छापे का विरोध किया और नारेबाजी भी की। इसके बाद सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी हंगामा हुआ। यहाँ फोन टैपिंग और जासूसी का मुद्दा भी उठा। 26 जनवरी को दिल्ली में उग्र प्रदर्शन के बावजूद दिल्ली सरकार ने किसानों को एंट्री की इजाजत दे दी। यह परमिशन 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक की है। प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चलेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ मंजूरी दी है। भारत में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा रिपोर्ट के मामलों में 10 गुना ज्यादा हो सकता है। कोरोना मॉडर्न इंडिया के दौरान सबसे भयानक त्रस्ती के तौर पर सामने आ सकता है। अब तक की सबसे बड़ी रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि मंगलवार को रिलीज हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना 30 लाख से 49 लाख मौतें जून 2021 तक हो चुकी हैं। गाजियाबाद की साक्षी चौधरी अब भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी की राह पर चलने को तैयार है। साक्षी का चयन पोलैंड में शुरू हो रहे वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में हुआ है। यह वर्ल्ड चैंपियनशिप 9 से 15 अगस्त के बीच होना है। महाराष्ट्र में मंडावा गांव में रहने वाले किसान ने बेटे अभिनेश साबले 1952 के बाद मेंस 3000 मीटर स्पीचलेस के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2019 में दोहे में हुए मेंस वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप फाइनल में 8 मिनट और 51.37 सेकंड का समय निकालकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। अविनाश ने सेना में जाने के बाद एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू किया। पिछले साल सचिन पायलट कैंप की बवाल के बाद सुलह के वक्त तय मुद्दों पर कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर काम शुरू हो गया है। सचिन पायलट समर्थकों की मांग का विचार करने के लिए बनी सुलह कमेटी ने अपनी सिफारिशें हाईकमान को सौंप दी है। संगठन महासचिव के वी वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन की कमेटी ने मांगों और सुझावों को सुनने के बाद तैयार की गई सिफारिशों को कांग्रेस हाईकमान के सामने रखा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक सहित कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत की खबरें आई थी। मगर एक दिन पहले ही केंद्र ने सदन में बयान दिया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, क्योंकि राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत की सूचना नहीं दी है। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने से पहले ही सरकारी तंत्र ने सिर्फ हथियार डाल दिए, बल्कि एक ही निजी फार्म को फायदा पहुंचाने के लिए तैयारी कर ली है। तीसरी लहर आई तो जिला और सैटेलाइट समेत करीब 3000 अस्पतालों की जांच आउटसोर्सिंग पर दे दी गई है। आयकर विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि आयकर विभाग के दैनिक भास्कर ग्रुप पर छापे पड़ चुके हैं। भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, इंदौर और जयपुर में तरकद में नजर आ रही है। समूह के ठिकानों पर सुबह सुबह पहुंची है आईटी टीमें, तो वहीं जयपुर दफ्तर पर 30 से 35 आईटी अधिकारी अभी भी मौजूद हैं। वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर पार्षद महेंद्र दैमन ने ज्ञापन सौंपा है। आखिरकार किन मांगों को लेकर के उन्होंने ज्ञापन सौंपा, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के बांदीकुई आगमन पर पार्षद महेंद्र दैमन ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि ब्रिटिशकालीन रेल नगरी बांदीकुई शहर के मध्य स्थित आगरा फाटक संख्या 104 की जटिल समस्या के स्थायी समाधान, लिलोस फाटक संख्या 101 से दिल्ली लाइन को सीधा जोड़ा जाकर के आगरा लाइन शहर के मध्य से हटाई जाकर बांदीकुई की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है। साथ ही दैमन ने बताया कि स्थायी समाधान होने तक आगरा फाटक संख्या 104 पर स्पॉट ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाए, ताकि बार बार लगने वाले जाम से निजात मिल पाएगी और इस फाटक से सैकड़ों गांव का आवागमन रहता है। ट्रैफिक के भारी दबाव के कारण पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और इमरजेंसी सेवाओं में भी कोई राहत नहीं मिल पाती। दुर्घटनाग्रस्त और गंभीर अव्यवस्था के बीमार पीड़ितों को भी फाटक पर मृत्यु का निराश होना पड़ा है। पूर्व में भी ट्रैफिक कंट्रोल प्लान पार्षद महेंद्र दैमन द्वारा दिया गया था, जिस पर पूर्ण काम अभी तक नहीं हुआ और उस कार्य को भी पूर्ण करवाया जाए। इस दौरान पार्षद दिलीप सैनी, मनमोहन, इंद्रजीत सिंह, प्रभाकर सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। एक और खबर सामने आ रही है।
है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है। लखनऊ के SGPGI अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, तो वहीं ICU में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है कल्याण सिंह। चलिए अब एक रुख कर लेते हैं गंगापुर सिटी की ओर, जहां पर प्राइवेट बसों की बीमा अवधि को बढ़ाने को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। और क्या कुछ इस ज्ञापन के अंदर मांगे रखी गई हैं, आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। लॉकडाउन के दौरान खड़ी रही प्राइवेट बसों की बीमा अवधि बढ़ाई जाने के क्रम में SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष लॉकडाउन के दौरान खड़ी रही प्राइवेट बस संचालक एवं ऑपरेट पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे संदर्भ में आज गुरुवार को गंगापुर सिटी में न्यू प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के दौरान न्यू प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह नरूका ने कहा कि कोरोना के कारण बसों का संचालन नियमित नहीं हुआ। डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और बसों का किराया जो 5 वर्ष पहले था वही आज है। बसों के कलपुर्जे, टायर आदि की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है और लॉकडाउन के दौरान खड़ी रही बसों का बीमा भी निरंतर चल रहा है। हमारी करीब 4 दिन पहले जयपुर में राजस्थान लेवल पे एक मीटिंग हुई थी प्रेस क्लब में। उसमें निर्णय लिया गया था और राजस्थान में 22 तारीख को एक दिन का सांकेतिक चक्का जाम का आयोजन हमारे किया जा रहा है और जिसमें प्रमुख रूप से हमारी मांग है 1 साल का टैक्स माफ़ करना संपूर्ण। और लगभग ये मानिए जिस समय डीजल 50 रुपये लीटर हुआ करता था 5 साल पहले, उस समय का किराया हम आज भी ले रहे हैं। तो हमारी एक सबसे बड़ी मांग ये भी है कि 40% रोडवेज के किराए में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि रोडवेज हमारा कंपटीटर है। रोडवेज में वृद्धि होगी उसी के अनुपात में हम किराया हमारा बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा एक हमारी मांग है, जो गाड़ी लॉकडाउन के दौरान खड़ी रही है, सरकार की ओर से आदेश था लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो गाड़ी खड़ी रही है उसके बीमा की अवधि भी एक्सटेंड करनी चाहिए। और इसके अलावा आने वाले टाइम में जिस हिसाब से डीजल की कीमतें बेतहाशा से बढ़ रही हैं, हमारी मांग है हम हमारी गाड़ियों को CNG में तब्दील करें। इसके लिए CNG स्टेशन की यहाँ पे उपलब्ध कराई जाए और CNG किट लगवाने के लिए गाड़ियों में, जैसे सरकार हर चीज़ में सब्सिडी देती है, रोडवेज को सब्सिडी देती है, हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेट बसों को भी CNG किट लगवाने के लिए सब्सिडी दी जाए। गए लॉकडाउन में इन्होंने हमको एक स्लैब बढ़ाया था, 2 महीने का शायद टैक्स माफ़ किया था। उसके बाद इन्होंने 1 महीने में 25% टैक्स लिया था, उसके दूसरे महीने में उन्होंने 50% लिया था, तीसरे महीने में उन्होंने 75% लिया था और बाद में उन्होंने टैक्स पूरा स्लैब चालू कर दिया। मगर परिस्थिति ये बन गई है, दोनों सालों से हमारा जब व्यवसाय का टाइम आता है, एक शादियों का टाइम होता है प्रॉपर, जिसमें बस वालों को थोड़ी आय की संभावना होती है, क्योंकि रूट पे कुछ रखा नहीं है। तो जब जैसे ही शादियों का सीज़न आया, गई साल मार्च में एकदम लॉकडाउन लग गया और हमारी जितनी शादी बुकिंग थी, पार्टियाँ थी, सब कैंसिल हो गई और वही दौर दूसरी साल 2021 में वापस आ गया। जो हमारा एक सीज़न का टाइम था जिसमें हम कुछ उम्मीद थी हम कमाने की, वो हमारी वापस चौक गई। अगर हमको इस सांकेतिक हड़ताल से सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिलता या हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, तो निश्चित मानिए अगले आने वाले दिनों में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और आंदोलन भी ऐसा होगा, चक्का जाम हमारी बसों का होगा, साथ में हम सबका चक्का जाम करेंगे और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी